Welcome back, guys. हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स क्वेश्चन 26 टू क्वेश्चन 30 पेपर 15054. Let's start. Question 26. Two identical resistors connected in parallel have a total resistance of 4 ohms. What is the total resistance when the same two resistors are connected in series? Acha, first of all, the first part is two identical resistors connected in parallel have a total resistance of 4 ohms. That means कि अगर ये है फॉर एग्जाम्पल 2 ohms, तो दिस वुड बी 2 ohms एज वेल. समझ आ गई? दे आर आइडेंटिकल. तो इसके रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले करवाया हुआ है एंड द क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस. या दिस वाज द क्वेश्चन. मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंसेस सिमिलर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हो, राइट? 5000 की एक रेजिस्टेंस है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, और अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे बाय द अमाउंट ऑफ resistors, by the amount of similar resistances connected in parallel, so you will get the total resistance, right? तो अगर आप सेम फॉर्मूला सेम रूल यहां अप्लाई करो तो इजीली यू कैन गेट 4 into 2 is equals to 8. 8 ohms will be equal to one of the resistors, but we're not going to be doing that. We're going to be diving deep into it and using the formula. तो what do you call it for उसका फॉर्मूला का कौन सा क्या था? एक सेकेंड जी. This was the formula. This was the formula of resistors in parallel, multiple resistors in parallel. Multiple resistors in parallel is equals to 1 by R total is equals to 1 by R1, 1 by R2. Since the value of R is equal, the value of R is identical. The value of R is equal to the other value of R. Both of them are same. Therefore, we can add them, right? और जब 2 by R आ जाएगा, right? अब हमने 1 by R plus 1 by R is equals to 1 by 4 लिख दिया. 1 by 4 being the total resistance. 1 by R plus 1 by R is equals to 1 by 4. अब यहाँ लिख दिया हमने 2 by R क्योंकि इनको ऐड कर दिया हमने. 2 by R is equals to 0.25. R इधर जाएगा और 0.25 नीचे आ जाएगा. तो 2 divided by 0.25 will get an answer of 8 ohms. 8 ohms will be the answer. But wait, they haven't. The answer is not complete yet. उन्होंने बोला है कि टोटल रेजिस्टेंस बतानी है. टोटल रेजिस्टेंस मतलब एक रेजिस्टर है उसके अंदर 8 ओहम्स है, राइट? एक रेजिस्टेंस के अंदर 8 ओहम्स है, तो दूसरे में भी 8 है. और सीरीज में आपको क्या करते हैं हम? सीरीज में वी ऐड देम, राइट? सीरीज में वी ऐड द रेजिस्टेंसेस टू मेक अ टोटल रेजिस्टेंस, and the total resistance will be 8 plus 8 will be equals to 16 ohms, which is D. Question 27. Three identical lamps and 3 ammeters are connected as shown. This is 1 lamp, 2 and 3. The readings on the ammeters are I1, I2 and I3. How are the readings related? First of all, they have told us there are 3 identical lamps. Identical lamps mean there are the amount of resistance experienced in each of the lamp is equal. हर लैम्प में द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल. ठीक है ना? हाउ आर दीज रीडिंग्स रिलेटेड? तो सबसे पहले I1 विल बी द ग्रेटेस्ट रीडिंग बिकॉज जो पैरेलल होता है ना उधर करंट डिवाइड हो जाता है, राइट? रिलेटेड टू हाउ मच वो रिलेटेड टू हाउ मच रेजिस्टेंस देयर इज, राइट? जहां कम रेजिस्टेंस होगी वहां ज्यादा करंट जाएगा और जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वहां कम करंट जाएगा. ये आपको मैंने एग्जांपल एक ऐसे समझाई थी, राइट? फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हो गाड़ी पे अपनी, एंड यू हैव एन ऑप्शन टू गो आइदर हियर where there is traffic or either here where there is no traffic. Where will you go? You will go where there is no traffic because that will be an easier path for you. Current भी ऐसे ही सोचता है. Current goes where there is less traffic, where there is less resistance in this manner. ठीक है ना? तो I1 सबसे ज्यादा करंट होगा because
अभी कोई करंट डिवाइड नहीं हुआ, दिस विल बी I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3, लेकिन वो हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो I1 विल बी द ग्रेटेस्ट, और उसके बाद जो I2 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन I3, बिकॉज I2 पे वो करंट जा रहा है जहां उधर कम मतलब रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। आई हैव टोल्ड यू कि जहां कम रेजिस्टेंस होगी वहां ज्यादा करंट जाएगा, और जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वहां कम करंट जाएगा। तो देयरफॉर इन कॉन्ट्रास्ट I1 should be the greatest, I2 should be smaller than that, and I3 should be the least, what do you call it, the मतलब सबसे कम करंट होगा I3 में। आपको मैं एक दफा आई रिपीट इट, सिंस the current goes where there is least resistance. So I2 will be greater than I3, and initially I1 जो होगा that will be a sum of I1 and I3, because parallel में जो करंट होता है that divides, मतलब यहाँ ज्यादा करंट जा रहा होगा तो लेकिन यहाँ कम करंट जा रहा होगा। तो in contrast I1 is the greatest, I2 is smaller than that, and I3 is the least. So D will be the answer. Let's check. कौन सा क्वेश्चन था, भूल गया। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27, D is the answer. Okay. आगे क्वेश्चन 28, a thermistor and a light dependent resistor LDR are connected in series. A potential difference PD of 6 volts is applied across them as shown. This is the PD, potential difference. The thermistor has a resistance of 6000 ohms in a cold room and 1000 ohms in a warm room. Resistance कम हो जाती है as the thermistor experiences warmth. जैसे जैसे थर्मिस्टर गर्म होता जाएगा रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। The LDR has a resistance 2000 ohms in a dim light और 500 ohms in a bright light, और जितनी ज्यादा लाइट देंगे आप LDR को उतना कम उसका रेजिस्टेंस होता जाएगा। When is the potential difference across the LDR equal to 2 volts? अच्छा, हमारे पास ना दो सेट्स ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है ना। हमारे पास दो सेट्स ऑफ वैल्यूज हैं, एक है हमारे पास 6000 एंड 2000, और एक है हमारे पास 1000 एंड 500। इन दोनों सेट्स ऑफ वैल्यूज को हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, वी हैव द पीडी विच इज 6, हम v इज इक्वल टू आई आर लगा रहे हैं, राइट। v इज 6 इज इक्वल टू आई निकालना है, एंड व्हाट इज आर, r इज टोटल रेजिस्टेंस विच इज 8000। तो 6 डिवाइडेड बाय 8000 विल बी इक्वल टू 0.0008। और अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलडीआर निकालना है तो हम उसको एलडीआर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम फिर से लगाएंगे v इज इक्वल टू आई आर, वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द वोल्टेज इज अक्रॉस द एलडीआर, राइट। हमने वोल्टेज इज हमने निकालनी है द वोल्टेज अक्रॉस द एलडीआर, और हमने तब आइडेंटिफाई करना है जब उसकी वोल्टेज 2 वोल्ट हो। तो v इज इक्वल टू आई आर, आई हमारे पास क्या है 0.0008 इंटू आर क्या होगा, हम एलडीआर की रेजिस्टेंस लेंगे विच इज 2000। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वी विल गेट एन आंसर ऑफ 1.6 volts. So as we can see this answer is wrong. तो हम अब दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं, राइट। तो अब हम लगाएंगे v इज इक्वल टू आई आर, राइट। हमने हमारे पास वोल्टेज क्या है 6 इज इक्वल टू आई इंटू आर क्या है हमारे पास 1500 विच इज 1000 प्लस 500। तो 6 डिवाइडेड बाय 1500 will be equals to 0.004, राइट। तो हमारे पास करंट आ गया 0.004। तो अब हम इसको एलडीआर की रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.004 इंटू 500, व्हाट विल वी गेट 2 वोल्ट्स, दिस इज द राइट आंसर। अब हमने इसको लिखना कैसे, हमने इसको क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब हमने इसको क्वेश्चन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमने ये देखना है कि हमने कौन सी कंडीशंस के साथ वाली वो ली है रेजिस्टेंसेस।
पहले हमने लिया 500 वोल्ट्स के साथ वाली रेजिस्टेंस एंड दूसरी हमने ली है 1000 वोल्ट्स आई मीन ओम्स के साथ वाली रेजिस्टेंस विच इज वार्म रूम एंड ब्राइट लाइट, वार्म रूम एंड ब्राइट लाइट, तो दैट वुड बी सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 29, a potential divider uses a power supply of voltage 12 volts. The resistors X and Y initially have equal resistances. The resistance of X is half. What is the change in the output voltage? अच्छा, the output voltage is between the resistor Y. समझ आई? अच्छा, इनिशियली हमने भला क्या किया है? इनिशियली हमने दोनों को X और Y की रेजिस्टेंसेस को 3 ohms ईच दे दी है, just because they said okay, they have equal resistances. This is just for reference. These are not the actual values. तो वोल्टेज आउट का फॉर्मूला क्या था? R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। R1 डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज, आई मीन R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। तो हमने अब क्या किया है? 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज व्हाट डू यू कॉल इट, रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल, राइट? हमने रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल लिया है 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 12 विच विल बी 6 वोल्ट्स, राइट? अभी हमारे पास 6 वोल्ट्स आ गए बिफोर इट बीइंग हाफ। इसका हाफ होने से पहले 6 वोल्ट्स आया इसके आंसर, राइट? अब हमने कर दिया इसको हाफ, राइट? हमने एक्स को कर दिया हाफ। एक्स पहले 3 था, अब हमने एक्स को कर दिया 1.5। समझ आई? अब हमने एक्स को कर दिया 1.5, तो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू 3 हमने रखा है, 3 डिवाइडेड बाय 4.5, क्योंकि द सम ऑफ both of the resistances will be 3 plus 1.5, because this is 3, this is 1.5, that will be 4.5 volts, I mean ohms. That will be the total resistance in the denominator. Denominator हमने total resistance रख दी है, and that gives us an answer of 8 volts. That means कि जब पहले 3 ohms और 3 ohms each था, then we were getting the value of 6 voltage, 6 volts. But after we change, after we halved the resistance X, तब हमारे पास value क्या आ रही है? 8 volts. So that proves के 8 minus 6 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 volts, और 2 volts का हमारे पास change in output voltage आ रही है, that will be C. ये हमने वैल्यूज के साथ किया। अगर आपने वैल्यूज के बगैर वो उसको मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज करना है द क्वेश्चन, तो ये मैंने साथ ही लिखा हुआ है। वी आउट इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2, R1 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 which is R1 is the amount of resistance that will, like हमने जिसकी कैलकुलेट करनी है वोल्टेज, राइट? दैट इज द रेजिस्टेंस जिसकी हमने वोल्टेज निकालनी है, दैट इज R1, R1 plus R2 is the total resistance multiplied by the voltage. तो ये हमने ले लिया R, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया R से, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया R से, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया R से। R डिवाइडेड बाय R प्लस R मल्टीप्लाइड बाय 12 is equals to R divided by 2R multiplied by 12 will get 6 volts. अब in the second scenario R divided by 0.5 R, because क्या हुआ है? X की रेजिस्टेंस हाफ हो गई है, तो ये आ जाएगा R divided by 1.5 R multiplied by 12 which will be equals to 8, we'll get the same answer of course, लेकिन हमने इसमें वैल्यूज पुट कर ली थी, इसमें हमने वैल्यूज नहीं पुट की, which इसका एक आंसर देख लेते हैं। 29 C, ओके 29 का आंसर है C, yes. Which unit is the same as a volt? So that is a pretty straightforward answer. Watt divided by ampere. Yeah. So that is going to be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.